Welcome to my dear online students. This is another session for class 12th chemistry. In the previous session, we have started important topic of chemistry, that is colligative properties, which is also known as democratic properties. And you know that colligative properties are those properties of the solution which depend only upon the nature of the solute of the solution, which depend only upon the number of particles of the solute in the solution or number of moles of the solute in the solution, which do not depend upon the nature. That means colligative properties are independent upon the nature of the solute of the solution. For calculating the colligative properties, you know that there are four types of colligative properties: relative lowering of vapor pressure, osmotic pressure, elevation in boiling point, and diffraction in freezing point. Remember one thing here, sometimes you will be asked, suppose whether osmosis is colligative property or not. No, osmosis is not colligative property. Or simply you will be asked whether vapor pressure is colligative property. No, vapor pressure is not colligative property. Lowering in vapor pressure is not colligative property, but relative lowering in vapor pressure is colligative property. Simply sometimes you might be asked whether boiling point is a colligative property or not. No, boiling point is not a colligative property. So elevation in boiling point is a colligative property. Diffraction in freezing point is a colligative property. These points you must be aware about these factors. In today's topic, we will discuss what is Van't factor. I have already given you information in the previous topic about the Van't factor. Still, I am going to explain you again, and I am going to revise it. What is Van't factor? I. What is the reason to calculate I? I को कैलकुलेट करने के लिए वांट हाफ को I निकालने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन हम दो चीजों के बनाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट. जो सोल्यूट होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो सोल्यूशन में चेंज होता है या चेंज नहीं हो सकता. यही कि सोल्यूट का बिहेवियर कैसा रहेगा सोल्यूशन में, वो सोल्यूट का बिहेवियर कैलकुलेट करने के लिए वांट हाफ ने एक फैक्टर हमें दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? आई. What is the now aim of this I? It gives us the idea whether the solute gets dissociated or associated or remains unchanged in the solution. जब भी हम कोई solution बनाते हैं तो क्या solute वहां पे dissociate हुआ, क्या उसकी association हुई, क्या वो unchanged रहा, क्या उसको कुछ भी नहीं हुआ, ये हमें सब पता चलता है I से. या दूसरे लफ्जों में हम ये भी बता सकते हैं कि I से हमें पता चलता है कि जो solute के particles हैं जो हमने डाले थे, जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट, या जिनको हम बोलते हैं थियोरेटिकल, जो हम यहाँ से डाल रहे हैं, वो क्या उन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या वो अनचेंज रहते हैं, क्या वो वैसे के वैसे रहते हैं जैसे हमने डाले थे. तो ये है आइडिया किसका? शाबा वांट फैक्टर का. दैट मीन्स in other words it explains whether the number of particles of solute increases or decreases or remain unchanged in the solution. Now there are various formulas by which we can calculate the I. First formula is I is equal to number of particles after association or dissociation. solute के कितने number of particles बचे या बने आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर. जितने आपने डाले होंगे क्या उनमें इंक्रीज, क्या वो पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, या ऐसे कैसे रह गए. तो ये है उसकी फार्मूला है. दूसरी फार्मूला क्या है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसी का हम और एक बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये एबनॉर्मल क्या होता है? मिसाल के तौर पर क्या जब आपने सोल्यूट को डाला क्या उसके बिहेवियर में चेंज आई, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्या वहाँ एसोसिएशन हुई या डिसोसिएशन, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अगर उसमें कोई चेंज नहीं आई तो दैट मीन देन इट इज नॉर्मल. दैट मीन मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा रिमेन अनचेंज्ड, वही हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल. इसी तरह यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया आपने, जब आपने सोल्यूट को सोल्यूशन एक सॉल्वेंट में डाला तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, क्या उसके पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, क्या उसके डिक्रीज हुए, क्या हुआ ऐसे के ऐसे. थियोरेटिकल हो गया जितना आपने डाला था. तो अगर आपने 1 मोल डाला क्या
एक मोल NaCl डाला, क्या वहां पे खाली एक ही मोल NaCl है, या Na के अलग एक मोल बन गया, Cl का अलग एक मोल बन गया। इसी तरह ये आपको ये पता चलता है कहाँ से, I से। I की और एक फार्मूला है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या M थ्योरेटिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एबनॉर्मल के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑब्जर्व्ड। इसी तरह एबनॉर्मल मोलर मास के साथ हमने क्या लगाया, M ऑब्जर्व्ड, मोलर मास ऑब्जर्व्ड। नॉर्मल के साथ हमने क्या लगाया, M थ्योरेटिकल। तो ये है फार्मूला। तो यहाँ से आपको बहुत सारे और फार्मूला भी बन सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे और एक फार्मूला बनाऊंगा, I इज इक्वल टू M थ्योरेटिकल डिवाइड बाई M ऑब्जर्व्ड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, M ऑब्जर्व्ड अब किसके बराबर होता है, शाबाश, M अगर हम लिखेंगे ऐसे, सॉरी अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे मैं करूंगा, M ऑब्जर्व्ड किसके बराबर होता है, M थ्योरेटिकल डिवाइड बाई I। और अगर आपको क्या निकालना होगा, M थ्योरेटिकल वो किसके बराबर होता है, I इंटू M ऑब्जर्व। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू फिर निकाल सकते हो। जब आपके पास I का आइडिया होगा तो आप M थ्योरेटिकल आपको पता होगा या M ऑब्जर्व पता होगा, तो आप कोई भी चीज़ फिर निकाल सकते हो। अब हमें यही वांट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जब भी हम वांट ऑफ फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, तो वांट ऑफ फैक्टर को स्टडी करने के दौरान हमारे पास अब तीन चीज़ें आती हैं, तीन केसेस आते हैं, शाबाश। या तो फर्स्ट केस एसोसिएशन, सॉरी हम पहला केस लिखेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास, मैंने कल भी आपको बताया था उस सेशन में, हमारे पास एक AB सॉल्यूट है। जब हमने उसको सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्वेंट में क्या हुआ, A बन गया A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। दैट मीन्स हमारे पास था एक मोल किसका, शाबाश AB का, वहां पे बन गया एक मोल किसका, शाबाश A का, और B का एक मोल। तो डिसोसिएशन में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश ऑब्जर्व्ड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। इसी को देखो, लिए कितने आपने बिफोर डिसोसिएशन, आपने कितने लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने लिए थे, एक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने बन गए, दो। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द, शाबाश I। सब अगर हमें इसी के लिए क्या निकालना होगा, शाबाश I क्या आएगा, यहाँ पे आएगा I, शाबाश 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि आपने कितने लिए थे, शाबाश एक लिया था, बन गए कितने, दो। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो डिसोसिएशन के लिए, शाबाश I का वैल्यू। और जो डिसोसिएशन के लिए I का वैल्यू आता है, वो हमेशा I का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। आप देखो यहाँ पे I का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। I का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये आपको याद रखना है। इसी तरह दूसरा केस क्या है, शाबाश, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेकंड केस इज एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, सपोज A2 आपने लिया, आपने इस तरह हम आपने एक मॉलिक्यूल लिया A2, या ऐसे हम बताएंगे 2A लिया आपने 2 एटम्स लिए तो वहां पे बन गया एक ही, या इस तरह आपने 3A लिए तो वहां पे बन गया A3, आपने 4A लिए तो वहां पे बन गया A4। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, दिस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड टेट्रामराइजेशन। तो एसोसिएशन में क्या होता है, जितने आप लेते हो उससे कम हो जाता है। आप देखो यहाँ पे आपने 2 लिए एक ही बन गया, 3 लिए एक ही बन गया, तो दैट मीन्स जो यहाँ पे I का वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1। I का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आता है इन केस ऑफ एसोसिएशन।
बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन 1। और थर्ड केस क्या है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं शाबाश नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो जाता है, सपोज अगर आपने ए लिया वो वैसा का वैसा ही रहा, या ए बी लिया वो वैसा का वैसा ही रहा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, आई का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये 3 किसे आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे केस फर्स्ट, हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में हम क्या पढ़ेंगे, आई। सभी केसेस पढ़ेंगे हम, शाबाश। केस फर्स्ट आई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको आई किसके बराबर होता है, एम थ्योरेटिकल डिवाइड बाय एम ऑब्जर्व। एम क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट थ्योरेटिकल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तो वहां पे हम आई का वैल्यू निकालते हैं, वहां पे हम वांटा फैक्टर का निकालते हैं, और वहां पे हमें एक फार्मूला बन जाती है डिसोसिएशन के लिए, क्या, 1 + n-1 into alpha. What is alpha? Alpha is degree of dissociation। और ये अल्फा हमें क्या बताता है, हाउ मच moles get dissociated या आयोनाइज्ड फ्रॉम 1 मोल। एक मोल में से कितने मोल्स क्या